پہلے تو آپ چھوٹا سا یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس کے بعد میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بہت ہی اہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پہلے چھوٹا سا یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں ہم آپ سے بات اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت۔ یہ آپ کے وہ بھی آپ کا اسم ہے، اب نام ہے شہزاد مصباح۔ جی جی جی، مفتی شہزاد مصباح۔ انہوں نے ایسا تماشا کیا نا، سب کو پتا ہے، ہاں سب تماشا کہ بھئی آن لائن نہیں ہو سکتا جی، نہیں ہو سکتا، وہ بھئی سب ہمیں پتہ ہے، ہم روزانہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں؟ میں یہی اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا مقصد یہی ہے آنے کا آن لائن آپ کے ساتھ، کہ مناظرہ کے تعلق سے ہی میں گفتگو کروں اور اس کو آگے بڑھاؤں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر سنا کہ مناظر اسلام، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہزاد علم صاحب کا تذکرہ کیا گیا۔ جی ہاں دوستو، گزشتہ دنوں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مفتی شہزاد علم صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا رافضی حسن اللہ یاری سے، اور جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں یا جتنے بھی اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے اہالی موالی، ٹھیک ہے، اس کے ڈالر پر پلنے والے ہیں، ان سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سید حسنین وقائی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو جو ہے رافضی حسن اللہ یاری کو یہاں بلا لیں۔ جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو کے اندر سن سکتے ہیں کہ شہباز صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ ہمارے علماء کو وہ جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ حضرت علامہ مفتی شہزاد علم صاحب نے آف لائن مناظرے کا جو مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مناظرہ جو ہے وہ نظر سے مشتق ہے۔ اب اس میں کیا تعویلیں انہوں نے نکالی ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد میں سب سے اہم بات یہ ہے، انہوں نے مکمل بات کو یا تو سنا نہیں ہے، اور اگر سن لیا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، کیونکہ سید حسنین وقائی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ اگر انڈیا آ سکتے ہو، جیسا کہ بابا جانی نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ انڈیا آ جائیں تو ان کا خرچ کون اٹھائے گا، تو سید حسنین وقائی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ محض اعلان نہیں تھا، انہوں نے حقیقتاً ایسا کہا تھا کہ اگر وہ 225 لوگ بھی آئیں گے، 250 لوگ بھی آئیں گے تو اس کا الحمدللہ رب العالمین میں خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ 25 ہوں۔ جیسا کہ بابا جانی نے کہا تھا کہ 25 لوگوں کا خرچ کون اٹھائے گا، تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ 250 لوگوں کا بھی خرچ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسری بات، انہوں نے ویڈیو کے اندر یہ کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آؤ، مناظرہ کرا جائے، یہ کیسے ممکن ہے، ایسا ہے ویسا ہے، طرح طرح کی باتیں انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بولی ہیں۔ دوسری چیز، مفتی شہزاد علم صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کیا اس ویڈیو کے اندر بولا ہے، آپ وہ بھی سن لیجیے گا، کیونکہ میں بہت زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ یہ جو ویڈیو میں چلانے والا ہوں یہ کافی لمبا ویڈیو، آپ اس کو مکمل سنیے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سید حسنین وقائی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ مناظرہ آف لائن کریں، اور ان کو جہاں کمفرٹ لگے۔ ہم اپنے علماء کے ساتھ میں وہاں آ جاتے ہیں، چاہے آپ دبئی آ جائیے گا، چاہے آپ سعودی عربیہ آ جائیے گا، یا آپ کو جو بھی دیگر ممالک ہیں جہاں پر آپ کو بہتر لگے آپ وہاں پر آ کے مناظرہ کر لیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص جو نیچے بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے ارشد رافضی، وہ کس طرح مفتی شہزاد علم صاحب کے بارے میں مغلظات بول رہا ہے، یہ تو آپ لوگ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ ہی لیں گے۔ لیکن میں ایک تذکرہ اور کر دوں، جیسا کہ یہ ان کا نام ہے سید شہباز صاحب، یہ جو ہیں حسن نظر رکھتے ہوئے مفتی شہزاد علم صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مفتی شہزاد علم صاحب جو ہے وہ قابل آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مستند عالم دین ہے۔ مفتی کلیم حنفی صاحب سے آپ کس بنا پر، کس بیس پر جو ہے وہ بغض و حسد رکھتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے دو مفتیان اکرام کے ذکر کیے، حضرت علامہ مفتی شہزاد علم صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ نوری صاحب قبلہ، جیسا کہ کچھ دنوں پہلے رافضی حسن اللہ یاری کے ساتھ میں ان کا مناظرہ بھی ہوا تھا۔ پھر دوسری چیز بھائی یہیں پر آ جاتی ہے، پھر سے آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ بار بار اس شخص کی تائید کیوں کر رہے ہیں جو کھلا ہوا کافر ہے، کھلا ہوا مرتد ہے، جو شیخین کے معاذ اللہ رب العالمین حضرات شیخین کے بارے میں اس طرح کے جملے بولتا ہے، ان کی تکفیر ثابت کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی ویڈیو کے اندر ایک جملہ یہ بولا، یا تو شیخین کے معاذ اللہ رب العالمین یا تو شیخین کا کفر ثابت ہوگا یا شیخین کا اسلام ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے آپ بھی مشکوک ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس مکمل ویڈیو کو، جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا اور ان کی باتوں کو نوٹ کیجیے گا، اور جو حضرات کون سے کتنے منٹ پر کوڈ کیا، آپ نے نوٹ کیا اس بات کو، آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں بولوں گا ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی ویڈیو کا جواب جو ہے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں علماء اہل سنت کی زبانی دلوائیں گے۔ آپ لوگ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا، مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا پہلے آپ۔
भाई साहब से आपसे मुआवजा तय हो जाता है अगर बिलफर्ज, और पहले तो पहले 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 शराइत होगा। रऊफ साहब पहले तो आप उनको मना तो लेना कि ये भागना छोड़ दें, पीछे इनके पीछे दौड़ दौड़ के मैं थक गया हूं। ऐसे शराइत रख दें कि पहले तुम हिंदुस्तान आ जाओ, ये मसखरा बातें। आपके नहीं, रेलवे मुनाजरा में 9 बजे का टाइम है तो 8 बजे आके बैठते हैं। वो कोई 8 और बजे कौम होगी जो रेलवे जो होते हैं वो भागने वाले नहीं है। और भाई ये भागना ही देखिए तो है ना अब्दुल कि रऊफ मुनाजरा साहब, नजर से है और ऑनलाइन मुनाजरा होता ही नहीं है जी, हिंदुस्तान आ जाओ, ये भागना नहीं है और क्या है। देखिए अब्दुल रऊफ साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं ये यानी कि इसके लाइव के जरिए भी ये पैगाम पहुंचा दूं। हसन अली यारी साहब को इंडिया बुलाना कोई खतरे से खाली नहीं है। और दूसरा ये कि हुकूमत हिंद से इसकी इजाजत लेना पड़ेगा। क्या हुकूमत हिंद इस बात की इजाजत देगी कि हम जो है किसी शख्स को अमेरिका से या जहां पर भी हसन अली यारी साहब रहते हैं उनको हम इंडिया बुलाना चाहते हैं डिबेट के लिए इजाजत देगी? और उसके बाद या तो कुफरे शैखैन साबित होगा या इस्लाम साबित होगा। क्या इनकी जान की हिफाजत ली जा सकती है? कुछ हो गया, किसी को कुछ खतरा हो गया, खून खराबा हो गया, ये इसका क्या करेंगे आप? तो हुकूमत और हिंद नहीं सबसे भाई, पहली बात हमारे तो इस काम बात भी की है ना। इजाजत नहीं देगी। शहजाद भाई देखे, मैंने इनसे शुरू में कहा था कि मुफ्ती शहजाद आलम जैसे कितने मौलवी हैं, इन्होंने कहा कि इससे बहुत सारे, मैं खुद कहता हूं इस जैसे लाखों लोग हैं ना। कोई भी कह दे तुम मेरे शहर में आज के मुझसे मुनाजरा करो, हम फारिग बैठे हैं भाई। हम फारिग, हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी बीवी बच्चे नहीं है, हमारा घर बार नहीं है, हमारे और मजीद काम नहीं है कि जो भी कह दे कि भाई तुम उठ के आ जाओ। किसी भी मोहल्ले का मौली, किसी ऐसे मुफ्ती तो कम तो नहीं है ना। और भाई पाकिस्तान के हर मस्जिद में ऐसे मुफ्ती 2-3 बैठे हुए होते हैं, मुफ्ती शहजाद साहब जैसे हर मस्जिद में, और हर गली में 5-5 10-10 मस्जिद होते हैं भाई। आपके मुल्क में भी ये हुआ होगा ना। और ये सिर्फ पाकिस्तान, ये पूरे आलम इस्लाम की यही हालत है, ठीक है ना, कि आप इधर आ जाओ, ये कोई तरीका कार है भाई? तो अर्ज ये है कि पहले ये ट्राई तो करें ना, ऑनलाइन मुनाजरा होता ही नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें ये कहते हैं कि भाई नहीं हो सका। ऑनलाइन मुनाजरा होता है, हो जाता है। और फिर देखें जो इन पर्सन जो हुजूर हाजिर होकर मुनाजरा होता है ना, उसमें अवाम को कौन कंट्रोल करेगा भाई? शरपसंद अफराद को कौन कंट्रोल कर सकता है? और जब मामला हसास होना, ये तो इस तरह तो नहीं है कि हम भाई रफुल यदैन पे मुनाजरा कर रहे हैं। रफुल यदैन में लोगों को गुस्सा नहीं आता ना, उसमें भी आता होगा, लेकिन इसमें तो गुस्सा आता है ना लोगों को, दोनों तरफ से। किसी ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन की तो शिया तो आग बगोले हो जाएंगे। सामने से हम कहते हैं कि भाई वो शेखैन का इस्लाम साबित नहीं है, तो वो तो पहले ही से आग बगोले हैं। अगर यहां पे 2 आदमी एक दूसरे को मारते हैं, किसी को चाकू लग पड़ती है, तो वहां की पुलिस दोनों को नहीं पकड़ेगी, मुंतजिमीन को, मुनाजरा करने वालों को, कि भाई यहां पे आदमी कत्ल हुआ है, इंक्वायरी होगी, अब तुम इधर रुक जाओ, जेल में आ जाओ 2 साल 3 साल तक, जब तक ये उनको इंक्वायरी हो जाए। इस तरह के मामलात में इस तरह की गारंटी थोड़ी होती है। ये शायद मेरे ख्याल में रऊफ साहब चले गए या डिस्कनेक्ट है। ये अच्छा, असल में ये है, इनके कई सारे मौलवी हैं, हमारे अरशद साहब इस बात को बखूब जानते हैं। खुद ये कोफी लईम और इससे इनसे भी कोई बड़े और भी उलमा हैं, ये अपने से कम इल्म वालों को, कम दर्जे वालों को ये कॉल करते हैं, फोन कॉल के जरिए ये उनसे यानी गुफ्तगू करते हैं कुछ दलाइल पर, अकायद पर। तो उसको ये मुनाजरा का नाम देके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, फोन पर गुफ्तगू करके, यानी सामने नहीं गुफ्तगू हो रही ना, ऑनलाइन गुफ्तगू और कॉल रिकॉर्डिंग करके उसको मुनाजरा का नाम देते हैं ये लोग। यानी इनके अंदर कितनी खबासत भरी है। ये खुद भाई शहजाद मिसबाही को तैयार करें और कहें कि लिंक बनाइए, वो लिंक मैं खुद आपको अपनी बता तरफ से दूं बनाए। मैं और आपको मैं इसके आपको अलावा बता दूं जितने सारे 2000 बड़े जी उलमा जी ने जी इनके मुनाजरे किए, गुलाम मुस्तफा नूरी का कम बड़ा यानी कि दर्जे वाले आलिम, बड़े बड़े उलमा ने मुनाजरात किए हैं आपसे, उनको एक फिक्र थी। हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगा जी कि जी जिसको फिक्र होती है ना, मुनाजरा की दर्द होता है जिसको, वो हर तरीके से मुनाजरे के लिए तैयार हो जाता है। तो शहजाद जी जी मिसबाही को लगता नहीं कि दर्द है कुछ उनको। सबसे पहली बात तो ये है, इसको सूफी को मुनाज़रे अहले सुन्नत का लक़ब जो है अवामुन नास ने दिया है, कोई आलिम वालिम ने नहीं दिया। ये 2015 में मुनाजरा करता घूमता था पहले यूट्यूब में देवबंदियों से, अहले हदीसों से, और उसको जो है धीरे धीरे बस उसको नारे लगने लगे और मुनाजिर बन गए। इसने कोई मुनाजरा नहीं किया है सामने बैठ के, किसी आलिम से, फाजिल से, किसी से मुनाजरा नहीं किया। ठीक है। आप हाँ, किसी आलिम और फाजिल से मुनाजरा नहीं किया है। जी सर। और मैं आपसे बात बता दूं, इसने जो ये शर्त ये रखी हमारे है यूसुफ आने साहब आए, वाली, यूसुफ साहब आए हैं दूसरे कैमरे में। ओ भाई यूसुफ साहब आ जाओ भाई, कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ चले गए यूसुफ भाई?
रुको रुको 5 मिनट रुको, आ रहा हूँ, रुको रुको 5 मिनट, और क्यों पान पान 5 लेने मिनट आ गए रहा हैं? हूँ, रुको। रुको रुको, चलो जब आ गए तो आपको लेकर आएंगे। रऊफ साहब, आपने भी नहीं बताया भाई, सबको पता है कि ऑनलाइन मुनाजरा हो सकता है, आपको भी पता है, और आपने शहजाद भाई का जवाब नहीं दिया कि बड़े उलमा ऑनलाइन नहीं कर सकते जी। और भाई बड़े उलमा कैमरा सामने लगा के माइक्रोफोन पे बात नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बात हो सकती है। मामला ये है कि आमने सामने बैठ के एक बार फाइनल कर लिया जाए। हाँ। तो आमने सामने ही तो है ना। और ये पहले और पहले बहुत आसान आवाज की भी चीज होती किया जाता है ना, बाद में मुश्किल। एक चीज जो आसान है, सहल है, मुयस्सर है, बगैर किसी मुकदमात के, वो पहले किया जाता है। नहीं हुआ तो फिर मुश्किल मुकदमात तय किए जाते हैं ना, मुश्किल काम किए जाते हैं। ये तो मुयस्सर है, है। बड़ा आलिम हो छोटा आलिम हो, कैमरा तो वही कैमरा है, माइक्रोफोन वही माइक्रोफोन है ना। शहबाज भाई हैं और ये जो है अरशद साहब हैं, इन लोगों से कहिए कि आप जो हम मसला को उनसे ये मुनाजा कराएं। मुफ्ती शहजाद आलम साहब तो कह रहे हैं कि जहाँ कहेंगे आप वहाँ अरे होगा। यार अल्लाह तौबा वो यार, तो मेरा आप होश हो प्लेटफॉर्म जाओ नहीं है, भाई। आप तो मेरे प्लेटफॉर्म पे है ना, यहाँ पे तो खादिम आप हाजिर जो है ना। है अंधे हो चुके हो, अंधे हो चुके हो रऊफ भाई, अब अंधे हो चुके हो बिल्कुल ही। पता नहीं क्या मुंह में आता है, बस बोलते रहते हो। अल्लाह की कसम है यार, तुम्हारे जैसा मामला बंदा ये मैंने नहीं नहीं है। देखा। सारी दुनिया देख देखो रही कि बेशर्मी की सूफियों के, मगर जो का दिफा कर रहे हो। जो भी अहले सुन्नत व जमात है पूरी दुनिया में एक है। जो अकीदा हमारा है वही 7 समुंदर पार वाले का, जहाँ हसन अल्लाह यारी साहब बैठे हैं वहाँ भी उनका अरे हमारा भाई अकीदा अहले वही है। सुन्नत, भाई अहले सुन्नत का कुछ नहीं, छुपो छुपो से अहले सुन्नत का सर्टिफिकेट सिर्फ अहमद रजा को दिया है। खुद कहते हैं कि अहमद रजा की तहकीक से कोई ऊपर जाएगा तो वो जहन्नमी जाएगा, नाउजुबिल्लाह। तुम खाली बातों ना करो, तुमने किताबों का मुताला नहीं किया तो तुम फालतू बोला नहीं, मत करो। मामला क्या है ना कि आपके दिल में फालतू हसद बोला और मत करो, नफरत है। छोटी छोटी किताबें आपके दिल लिखी है। आप आपके क्या बोले कि आपके दिल में हसद और नफरत है सुन्नियों से, समझ जी गए। नहीं नाउजुबिल्लाह, मैं 8 साल खुद रहा हूँ। मैं 8 साल खुद कहाँ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। तुम हमको ना बताओ, तुमसे मुझे सर्टिफिकेट क्या लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, ये हसद और तुम बुज़दिल तो है किताबें आला दिखा रहे हो, ये हज़रत का। सूफी की लिखी है, वो सूफी की लिखी है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े आलिम ने छोटे छोटे मदरसे के जो तालिब इल्म, उन्होंने किताबें लिख के रखी हैं। आपने ठीक है, कितनी किताबें लिखी है? तो आ, आपने कितनी किताबें लिखी है? क्यों, क्या 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 मतलब जो है, रिश्तेदारी करनी है आपसे हम? नहीं नहीं, आपके छोटे छोटे आप मुझे लिखे, आप रिश्तेदारी तो बहुत करेंगे? बड़े हैं। आप तो बहुत बड़े अरे हैं, नहीं, आपके बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे आलिमों ने लिखी मदारिस के। कितनी किताबें लिखी है? अरे किताबें लिखने के लिए तो मुहन्नस और मुज़क्कर का उसका इल्म होना चाहिए। बस 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 करो तुम लोग, बस करो, बस करो। मैं आपको, नहीं, छापा नहीं करते, बिल्कुल इतना मैं तो आपको इल्म होना दिखा ही देता चाहिए। हूँ। अब यहाँ पे बहराइच शरीफ की दरगाह है लखनऊ से आगे, वहां पे कई आलिम हैं जिन्होंने कई मुसन्निफ छोटी छोटी रिसाले लिखे हैं किताबों पर। और एक नहीं, 10 10 रिसाले लिखे हैं। तो क्या बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती, मुफक्किर हो गए वो? ये बताइए आपके दिल में जो इतनी उलमा के लिए नफरत कैसे आ गई? उलमा से हम्म। नफरत का अंजाम समझते हैं खात्मा ईमान पर होने का खतरा। नाउजुबिल्लाह, आप कह रहे हैं आला हजरत की जो तहकीक से ऊपर जाए तो? नाउजुबिल्लाह, कहाँ से नाउजुबिल्लाह, कहाँ से मनफरत हदीस आप लिया है यार? अकायद लाइन समझ नहीं वाकई आ आप रहा। लोगों का ये कौन से अकीदा है? हसद, उलमाए सू, अरे इतनी रऊफ उलमा साहब, उलमाए में जो सू है हसद जो ये और खुद हकीकत आज है। बुज़दिल दिल जिक्र में कर रहे हैं। बैठा है, इतना जो रऊफ उलमा साहब, ये का दिल हकीकत है। उस दिन ये बंदे कह रहे थे, बंदे साहब कह रहे थे, ये हमारे जो दोस्त हैं, कह रहे थे कि वो नऊजुबिल्लाह अलैहि सलाम नहीं कहना चाहिए। वो कह रहे थे ईमान अबू तालिब साबित ही नहीं है। ये ऐसी शिया सी का बातें शियार करते है। हैं उल्टी सीधी। इस समय ये शिया का शियार है क्या और क्या क्या उनसे क्या मुसाबाहत हराम है। क्या इससे? अलैहिस्सलाम कहना शिया से, हाँ, उनसे कुछ भी है, मुशाबाहत नऊजुबिल्लाह, हराम है। नऊजुबिल्लाह, वो बुखारी पर शिया था नऊजुबिल्लाह, ना, बुखारी ने नऊजुबिल्लाह। जब भी लिखा है फातिमा अलैहिस्सलाम, हो सकता है कि उस समय कहा हसन जाता होगा, टोटल अलैहिस्सलाम, पूरी हुसैन बुखारी शरीफ में अलैहिस्सलाम। मैं उस करूं, समय उस पूरी समय कहा बुखारी जाता शरीफ में होगा। 32 मकामात पर अहले अहले बैत अलैहिस्सलाम हम के क्या नामों के कह रहे साथ हैं, अलैहिस्सलाम है, 32 मकामात उस पर। दौर में कहा जाता होगा। आज अच्छा, के उस दौर दौर में में तो इस दौर तो में अब नहीं है, सही तो नहीं है बुखारी कैसे बुखारी, अब कैसे सही पढ़ते नहीं है थे जी। आप? बुखारी अब शरीयत ठीक चेंज है, हो गई है बुखारी ठीक के है, जमाने से अब तक। मैं कोई नया पैगंबर आया नहीं आप लोगों आप का? तो मैं इनको समझ जवाब नहीं दे रहे देता हैं। हूँ। हमारा ये इश्क नबी जो पढ़ते हैं मैं इनको बुखारी जवाब दे आता है देता हूँ बुखार नहीं आती है मैं बुखारी। इनको जवाब देता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हम्म, नहीं तो मुफ्ती अहमद अभी यार जो खान साहब आए नहीं थे जिन्होंने जाल यूसुफ के, साहब, अलैहि वो रहमान ने कलीम साहब के आदमी थे, मुफ्ती कलीम, तो वो भाग गए तो भाई, हमने मुफ्ती उनको। अहमद यार खान नईमी ने खुद लिखा है अलैहिस्सलाम शर मिशकात के अंदर। हम्म, लिखी।
और आप कह रहे हो कि अच्छा, ये अब्दुल अहले रऊफ सुन्नत साहब, का नहीं है, शियाओं का शियार है। मैं अब्दुल अरे रऊफ साहब से मैं एक सवाल मुफ्ती करना अहमद चाहूंगा। आप कब यार से नईमी सुन्नियत अलैहि सुन्नियत रहमत कह को रहे हैं? आप ये भी सुन्नियत की लिखी है तारीफ करिए थोड़ा सा, सुन्नियत की तारीफ क्या है? जी। ये अब्दुल रऊफ बताइए कि साहब, आप आप, मुनाजरा मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आप सुन्नियत की तारीफ करिए। फ्रीज हो गए बेचारे, वो फ्रीज है भैया, अब्दुल रऊफ साहब फ्रीज है। नहीं, अभी देखिए मैं इनको क्या करता हूँ, अभी देखिए इनको करने दीजिए सुन्नियत की तारीफ। जी सर। कहाँ है बाबा जान, आज कहाँ है? अरशद में आप जब तक बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने खुद लिखा है सलाम। इनको शायद उनको भी किताबें इन्होंने देखी भी नहीं होगी अभी तक। ठीक है, जाकर पहले मुफ्ती अहमद यार नईमी की किताब निकालो अपने पीछे कुतुब खाने से, उसमें देखो अलैहिस्सलाम कई मकाम पर लिखा है। खुद अब्दुल अजीज मोहदलवी ने फतावा जिजिया में लिखा है। अरे जाओ, छोड़ो तुम लोग, बस तुम लोगों का यही है, बस यही अपने आलिमों के फतवे पर अमल करना, एक तरफ देखना दूसरी तरफ ना देखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको तो सलामती कुरान दे। शरीफ में भी अल्लाह कैसी ताला बात कर रहे फरमाया ना, हो यार। सलामुन अला इलियासीन, बिल्कुल बिल्कुल। सलामुन अला इलियासीन, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया। तो ये तो आले यासीन यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम है, खुद अल्लाह ताला सलाम भेज रहा है अहले बैत पर। अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है? उन पर सलाम हो। ये बुखारी सही शरीफ फरमा। में कुल 32 मकामात पर अहले बैत अलैहिस्सलाम उनके नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। और ये ऐसा फतवा देने ने पहले कहा जाता था, अब नहीं कहेंगे। कैसी बेवकूफी वाली बातें हैं ये। ये बिल्कुल सब सही। जो है उलमा परस्त है। अल्लाह आप सबको सलामती दे। चलें, ये किबला भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मुझे नहीं लगता अब क्या खबर है उनसे, बरेलवियों की जानिब से बस ये कोई खबर है कि सीरियस मुनाजिर बहुत है जो हमारे साथ बहुत मुनाजरा करे? नहीं ये नहीं, कोई नहीं मुनाजिर है, उसको उसने इसीलिए मुनाजरा दिया है कि आप वहां आ नहीं पाओगे, और वो हम्म, वही जीत जीत फतेहाबी का ऐलान कर देगा। उसीलिए उसने बिल्कुल चैलेंज बिल्कुल, दिया है। खैर, हाँ, इसीलिए ये अब वो बहाना, एक जानता था ड्रामा कि है। आप वहां आ नहीं पाओगे। हाँ, वो आया नहीं पाओगे, वो जानता है, उसने आपकी क्लिपें देख ली हैं, तमाम लोगों ने देख ली, वो सब अंदाजा लगा चुके हैं। ठीक है। और वो एक एक मौलवी था बकाई करके, उसने फारसी में गुफ्तगू किया है। मैंने कहा अरे बताओ, ये फारसी में बोल रहा है। सीख के आया, पढ़ के आया है। रट के आया, फारसी में गुफ्तगू कर रहा, तो सूफी कह रहा माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। उन्होंने जो है फारसी में हसन अल्लाह यारी को जवाब दिया है। अब जाओ फारसी में हसन अल्लाह यारी की तकरीरें देखो, अरबी में देखो, उर्दू में देखो, इंग्लिश में देखो, तुम्हारे दिमाग के परखच्चे खुलेंगे। वो सीख सीख कर रट 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 के आया है। अल्लाह आपको इज्जत दे। और उसकी तारीफें कर रहा है कि ये देखो ये कर दिया वो कर, इतना बड़ा बेशरम ये बंदा है, इतना बड़ा बेशरम है कि कोई आलिम इसके साथ नहीं दे रहा है, मगर तब भी कह रहा है कि हाँ हजरत ने मेरी तारीफें की है, आप लोगों ने देखा तो। एक आलिम कह रहा था 1.5 लाख का चंदा खाया है, इसने 1.5 लाख रुपए का चंदा खाया है। इसी का जो है बुलाने वाला मुनासिब, 1.5 लाख रुपए का अच्छा, चंदा इसने खाया। हाँ, ये चंदा खोर है। अभी जो है इसने अभी ग्रुप में डाला है हजरत उमर के ताल्लुक से, कि हजरत उमर का वो जो है यकुम रमजान के आपका जो वफात है, इस निस्बत से चंदा डालें। 223 210 पता नहीं कौन कौन निस्बती से चंदा ये मांग रहा। ये आ गया मेरे ख्याल में, ये यूसुफ साहब के कैमरा हिल रहा है, इसके कैमरे में कोई आदमी आ गया, ये बेचारा, ये भी उसी ग्रुप का है। अगर भाई आपने गाली दिया तो हम आपसे बात नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आ, आपको हम काट देंगे अगर आपने गाली दिया, ठीक है ना भाई। नहीं नहीं, रहने दीजिए, किसी को मत लीजिएगा। शेख साहब किसी को मत लीजिए, किसी को ना मत ले। लीजिए, यहाँ पे आएंगे सब उन्हीं के चट्टो बट्टो हैं। सब अच्छा, सब बिल्कुल गाली देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चलें, टेस्ट किसी कर को रहे हैं, ऑनलाइन आप मत देख लें कि वो लाइएगा। क्या बोलते हैं क्या है भाई, आप शुगल करें उनसे, मजे उठाएं। एक मिनट, अब मैं देख लूं कहाँ गया है आदमी। ओ भाई, कैमरा अपना एक जैसा रखो ना, कैमरा के साथ ना खेलो। हजरत ओ बरेलवी, कैमरे के सामने आ जाओ भाई। हाँ जी, क्या नाम है भाई? नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, इसको सूफी ने लगाया है कि जाओ फोन करो, मैसेज करो, ये करो वो करो, सब यही सब ये अरे सब काम कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला, बोलो क्या बोलना है। क्या बोलना है भाई? अरे चेहरा तो दिखाओ, परता बेगम तो कहीं की, चेहरा तो चेहरा तो दिखाओ ना, दिखाओ कैमरा जरा सा पकड़ना यार। आता है नहीं आता? लो चेहरा लो। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? हाँ, सलाम दे दो। सलाम नहीं आता? दिखाओ, बोलो। सलाम आता हेलो। नहीं आता भाई? हाँ, वालिदैन ने सलाम बोलना सिखाया आपको?
आपको सिखा नहीं क्या? तो आज मैं तो इधर बैठा हूं ना, आने वाला सलाम देता ना, तो अरे आने सुनो वाले ना, अल्लाह आने वाले का जिम्मेदारी है कि वो सलाम दे। हम तो इधर पहले से बैठे हैं ना। हम आए, आप दिए ना हमको। आ तो गए ना, कैमरा तो सही पकड़ो ना भाई। आप पकड़ो लो। क्या नाम है भाई? इसको नहीं आता भाई, तहजीब वहजीब नहीं है इसको, छोड़। अच्छा ले, निकाल दे इसको, निकाल दे। हाँ इसको छोड़ दें भाई, ये फजूल है, ऐसे ही। ये शेख साहब कहाँ गए थे रऊफ भाई? भाई, रऊफ रऊफ साहब, भाई थोड़ी ठंड रखो, थोड़ी नेटवर्क ठंड रखो, छोड़ ठंड। ये आपके बकाई साहब ने फारसी में कुछ बोला, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा था एक लम्हा 2 सेकंड के थे, वो फारसी में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या चैलेंज दिया मुनाजरे की? नहीं, हम समझे नहीं, अभी हम आए हैं, हमारा आपका कोई मौलवी साहब है, उसका नाम है हुसैन बकाई साहब। मैंने देखा था कि वो फारसी में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मैंने पूरी तरह नहीं सुना, मेरे पास टाइम नहीं था। तो क्या हुआ, वो मुनाजरा करना चाहते हैं मुझसे? वो भी कहते होंगे कि हिंदुस्तान आ जाओ ना, वो उनका भी बहाना नहीं, होगा। हम है नहीं, हम सुने नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता। अरशद साहब, उनका क्या पोजीशन है कुछ बकाई नहीं, साहब कुछ का? नहीं, कुछ नहीं साहब, ये वो कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, मुनाजरे कुछ का, नहीं। अच्छा मुनाजरा अगर करना चाहता है तो हम मुंतजर है भाई, बरेलवी, पूरे नहीं बरेलवियों नहीं को, नहीं, बस नहीं गाली करेगा, ना हो ना, नहीं करेगा, छोड़े छोड़े गाली के। छोड़े हाँ, छोड़े, कोई आप मुनाजरा, एक अच्छा, कोई आप मुनाजरा मैं नहीं अर्ज होगा। करूं कि शहजाद आलम अगर कोई रिजवाई साहब यानी से कि मुनाजरा करने के पूरी लिए तैयार पूरे हैं। हिंदुस्तान में मैं अर्ज करूं, पूरे हिंदुस्तान में अगर बरेलवी हजरात में उनकी जमात से मैं कह लूं, पूरी बरेलवियत में सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 उसूली मुनाजिर हैं और काबिल हैं, यानी कि जो मुनाजरा किए हैं अपनी जिंदगी में, कई मुनाजरात किए हैं और फतह याब भी हुए हैं। एक मुफ्ती मुतीउर रहमान है और अल्लामा क्या कहते हैं, शकीर अहमद जोखनपुरी साहब। फकीर है, फकीर अहमद जौगनपुरी हैं। ये 2 लोग हैं जो यकीनन बस। बड़े बड़े देवबंदी हजरात हो या बरेलवी, उनके सामने बैठे उनसे मुनाजरात किए हैं, लेकिन ये इनकी तरह नहीं है और वो इन चीजों में आते भी नहीं है मुनाजरात में, न खुद अपनी तरफ से बकवास करना। वो पूरे हिंदुस्तान में 2 उसूली आलिम मिलेंगे और मुनाजिर मिलेंगे, आपको इनके अलावा कोई नहीं मिलेगा। हर कोई या तो बहाने बनाएगा, क्योंकि बेंगलोर में मैंने देखा और झांसी में जो उन्होंने बदमाशियां की हैं वो मैंने वहां पर देखा। इनकी बचकानी बातें, बचकानी हरकतें, बेंगलोर में तो इन्होंने मुस्तनद मुस्तनद में जो है कितना घंटा लगा दिया, फिर उसके बाद में जो इन्होंने झांसी में जो किया वहां पर वकील पर इन्होंने कितना टाइम लगा दिया। ये सिर्फ बकवास करते हैं, असल मौजू की तरफ आते नहीं, क्या लफ्जों की हेर फेर करना, इधर से उधर घुमाना और भागना बस। मकसद अगर रऊफ साहब का भाई, मुनाजरा का है, नहीं नहीं, रऊफ भाई, मकसद अगर रऊफ आपका मुनाजरे का है तो बैठ जाइए फकीर सामने। अहमद को, दामोदर वालिया को आप लेके आइए मुनाजरा करने के लिए, माशाअल्लाह हम लोग बड़ी मुंतजिर हैं। उनको लेके आइए, सराखों पर हजरत है हमारे, उनको लेके इसको आइए, इसको इंशाल्लाह लेकर आए, गुफ्तगू होगी बहुत अच्छे अंदाज से। इसको लेकर फकीर आएंगे। रहमान साहब और फकीर अहमद सगीर अहमद जौगनपुरी बोल जोखनपुरी रहे को हो। लेके आइए, हाँ, अब सगीर अहमद जोखनपुरी को लेके शकील आइए, अहमद उनकी तारीफ मैं जोखनपुरी करता साहब हूँ अब बड़े हो और गए उनके हैं। मुनाजिर हैं। अब वो हमारे जमात के बड़े आलिम हैं। अब उनके लड़का भी मिस्र से पढ़कर आए हुए हैं, जामे अजहर से, तो शायद उनके बच्चे लड़का तैयार हो जाए। हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते ओ हैं, हम लोग देखना शेखैन का चाहते हैं कि इस्लाम आप बच्चे लोगों के लिए अहम नहीं है शेख साहब? नहीं, शिकैन के इस्लाम के लिए तो हम लोग हैं। बहुत अहम है, तो लेके बहुत आओ ना अहम है, किसी को। बहुत अहम है, शैखैन का इस्लाम आज बहुत अहम आज तो आज है। जब आप आए थे ना वो हदीस करतास पे, कोई इसका दोबारा देख ले भाई, कि इस हजरत से मैंने 10 दफा पूछा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे? ये तायद नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं होती थी, कहते कि भाई हमारे पैगंबर सच्चे थे, ठीक है ना, 10 दफा पूछा, नहीं, आपने क्योंकि आपने उनके वो जो सच से लिखा है ना, उनके सच से कुछ साबित होता था ना। नहीं, आप जो घुमा के पूछे तो उसी हसन पर अली आपको साहब, हम ला रहे थे। हाँ, जी सर। तो वो शहजाद आलम रिजवाई साहब से हो सकता है कि ऑनलाइन मुनाजरे के लिए तैयार हो जाएगी, हो हमारी राय सकता है। है, जब हो जाए तो बता देना भाई, जब हो जाए तो बता देना, फिलहाल तो वो भागने के फिक्र में। नहीं नहीं फिलहाल सूफी नहीं नहीं कलीम नहीं रिजवी फिलहाल सूफी कलीम रिजवी नहीं साहब नहीं से नहीं, आप मुनाजरा आप जो करेंगे। है मुफ्ती, सूफी अगर कलीम से ने अपने तैयार आप को हो जाए, नायल कर दिया भाई, गाली दे दे करना। अब उससे कौन शरीफ आदमी बात करता है ना भाई, हमने तो शुरू अगर से से शर्त लगा मान गाली ना दे, उसने तो आप ऐसे गालियों कई 4-5 हजार गाली मुख्तलिफ तो गाली तो दिया ना, ऐसे आदमी से हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। सीरियस होकर भी हम और हिंदू से अगर बात से करेंगे भाई, हम हिंदू से बात करेंगे, हम एथियस्ट से बात, क्रिश्चियन से बात करेंगे, मुसलमान से बात करेंगे, नासिबी से बात करेंगे, शिया से बात करेंगे, वो देवबंदी बरेलवी, लेकिन एक शख्स जो गाली देता है ना उससे बात नहीं करेंगे। वो गाली देता है भाई, ठीक है ना, वो मुझसे गुफ्तगू नहीं हो सकती ना,
اس نے گالی بہت سارے سر دی ہے نا. ایک مناظرہ آپ اب جب رکھیں وہ گے پھر صوفی اب کلیم ایسے رضوی صاحب گالیاں جو اب تو ناموس تک آ گیا نا. اب اتنا نیچا آدمی ہے وہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے. مجھے تو ترس آتا ہے بریلویوں پر, بمبئی والوں پر. یہ ان کا عالم ہے. یہ حالت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کے ناموس تک کو گالی دیتا ہے. بھائی ایسے آدمی سے کیا بات کریں شیخ صاحب؟ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایسے آدمی سے جو آپ کو اس طرح کی گالیاں دیتا ہو؟ ختم ہے بات. ہم نہیں کر سکتے. چاہے بریلوی اس کے فینس دیکھیں, اس نے 4-5 فینس ہیں اس کے پاس, زیادہ بھی نہیں ہے. وہ بھی اسی طرح بدتمیز, وہ بھی اسی طرح کے گالی میسج کرتے ہیں, ٹیکسٹ کرتے ہیں. تو ایسے آدمی سے کون, چاہے وہ اس کے فینس جو مرضی نعرہ بازی کریں, کہہ دیں کہ بھائی اللہ بھاگ یا بھاگ, ہم ان کی گالیوں سے بھاگ ہے. بھائی گالی والے آدمی سے مناظر نہیں کر سکتے نا. ایک بات ہماری سن لیجئے. جو جی صاحب. بہت بولی جی بولیے بولیے. اور بہت بڑے بڑے مناظر نے جو کام نہیں کیا ہے وہ صوفی کلیم رضوی صاحب کے الفاظ نے کر دیا. کیا نہیں ساری نہیں غلط بات ہے, بالکل غلط اندر بات ریف سے چھپا ہوا تھا وہ سامنے آ گیا. ہے, بالکل غلط وہ بات ہے, گالیوں کا عالم ہو سکتا غلط ہے, بات ہے, اصول کا عالم, حصولی عالم ہرگز نہیں ہو سکتا. غلط گالیوں بات کا ہے. عالم ہے وہ. دیکھیے وہ گالی, بھائی گالی دیکھیے چھوڑو بھائی. جو کام الفاظ کا تعجب ہے. تعجب ہے مجھے ایسے آدمی سے. ابو حنیفہ صاحب کا یہی سنت ہے بھائی. آپ کے جو بڑے مفتی ہیں ابو حنیفہ صاحب, ان کا یہی سنت ہے کہ گالی دے دو. استغفر اللہ, وہ استغفر کسی اللہ. کو امام ابو حنیفہ کا یہ ہرگز پرسنلی نہیں, گالی تھوڑی استغفر نہ اللہ, یہ مار رہے طریقہ ہیں. نہیں گالی ہوتا. جو عام لوگ جو فاسق لوگ دیتے ہیں وہ گالی تھوڑی نہ دے رہے ہیں کسی کو. اتنے علماء ہیں بھائی, ان کے کتابیں پڑھی ہیں, مناظرات لکھے ہیں, وہ گالی دیتے تھے بھائی. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ وہ بھی گندی گندی گالیاں. ٹھیک ہے نا, یہ غلط کام ہے بھائی. یہ اس کو, وہ تو عالم کے دائرے میں ہے ہی نہیں. جو گالی دیتا نا اس سے تو گفتگو نہیں ہے نا. اب دیکھیں آپ ایک کرسچن سے بھی بات کریں, ایتھیسٹ کہتا ہے اللہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے کہتا ہے نا, ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں, کیسے آپ خیریت سے ہیں, تہذیب کے ساتھ. گالی نہیں دیتے. اوکے, یہ تو ایک ابتدائی چیز ہے. اور چلیں, اب میں سب کو دعا کرتا ہوں بھائی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی سے نوازے. رؤوف صاحب تشریف آوری کا بڑا شکریہ. شہزاد بھائی. بس ایک بات میں عرض کروں گا, جی سر ایک بات بتائیں. عرض کروں گا, ایک بات عرض جی سر کروں گا میں ایک بات عرض کروں گا کہ علامہ فرمائیں. صغیر احمد جوہن پری دامت برکاتہ عالیہ کو لے کے آئے ہیں. وہ ہے مناظر, انشاءاللہ. وہ اہل سنت کی جان ہے, ٹھیک ہے, اور وہ درد ہے ایمان شیخین کا. آپ ہم لوگ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ بھی کاوشیں کریں, میں بھی کاوشیں کروں گا. صوفی کا نام مت لینا, صوفی کا مت لینا نام, اور اس کا نہ شہزاد عالم کا نام مت لینا. وہ تمہارے نزدیک ہوں گے, اور جو علامہ صاحب ہیں وہ شہزاد مناظر عالم ہیں, مصباحی فاضل ہیں. صاحب, مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب سے ایک بار آپ کی بات ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہونی 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 ارے وہ یار, تو پہلے بس انہوں نے رہنے دو فرار یار, کا اعلان کر دیا نا. یہ جو کہتا ہے ہندوستان آ جاؤ, آن لائن نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹ نہیں ہے. اتنا واضح جھوٹ, آن لائن ہو ہی نہیں سکتا جی. مناظرہ نظر سے دیکھنے سے, یہ سب جھوٹ فراڈ نہیں ہے بھائی, یہ تو سب کو پتہ ہے. مصباحی صاحب نے کیا نام ہے ان کا پورا نام, کیا پورا نام ہے اس کا؟ شہزاد مصباحی. شہزاد مصباحی. شہزاد مصباحی صاحب, انہوں نے شروع ہی سے انہوں نے ڈرامہ مچا کے ایسے موزک بات کر کے انہوں نے پہلے سے اپنے جبن کا اور اپنے بزدلی کا اور اپنے فرار کا اعلان کر دیا. میرے سامنے واضح ہے کہ اس بہانہ ہے, ایک بہت مضحک بہانہ ہے. چلیں شہزاد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. شب بخیر. ارشد بھائی. جی میں جی ایک بات ماشاء جی اللہ. سر, بسم اللہ بسم اللہ. میں جی سر. جس طرح یعنی کہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتا ہے, اصل میں اس کا ذکر تو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ کوفی لائن بھگوڑا ابھی اس سے تو مناظرہ نہیں ہوگا کیونکہ اس قابل نہیں ہے, شکست خوردہ ہے, ذلیل و رسوا ہو چکا, باولا پاگل ہو گیا, یہ اپنی ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ جو بھی ہے یہ حنفی نام نہاد حنفی ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہرگز یہ طریقہ عقیدہ نظریہ نہیں تھا. انہوں نے بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں اصلاح کی ہے, کتابیں لکھی جو بھی کی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مناظرہ ہوگا تو شہزاد مصباحی سے ہوگا, اور وہ آف لائن کی ضد چھوڑے, آن لائن مناظرہ کرے, اپنا ایک لنک بنائے, اسی پر حسن الیاری صاحب کو بلائے. اگر ایمان شیخین کا درد ہے, رکھتے ہیں, اگر یہ شوق ہے, جذبہ ہے تو وہ کریں, ورنہ یہ آف لائن کی ضد پکڑ کے بیٹھیں گے تو اس سے بھی ہمیں جو ہے یہ کہنا پڑے گا, آف لائن کا بہانہ بنا کر بھاگنا چاہتے ہیں ہمیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں بھاگنے کی بو ضرور آ رہی ہے. لیکن میں کوفی لائن کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ مناظرہ کرنا چاہیں گے تو آن لائن مناظرہ کریں. آن لائن بھی اسی طرح مناظرہ ہو سکتا ہے جس طرح آف لائن آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ ہو سکتا ہے. اگر یہ اسی پر ضد پر اڑے رہیں گے تو پھر دوسرے جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہندوستان کے, جو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑے کہوں گا میں اس دور میں, مفتی مطیع الرحمان اور صغیر احمد جوگن پوری صاحب, ان سے انشاءاللہ مناظرہ ہوگا. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے.